Assalamu alaikum, good morning everyone. Okay ji, moving on to the next topic in thanatology. So far you have discussed what thanatology is, how would you declare death, what is the WHO criteria to declare death, what are the types of death, what is sudden death. Then we come to the immediate changes. We have discussed the early changes. In early changes, we have discussed what? Alger mortis, liver mortis, rigor mortis. Okay? These are the main three things. Moving towards the next thing, we came to a specific area where initial 24 hours almost gone and the body is moving towards late changes. If the body is exposed in air or the body is even under the soil or body is in the water, in all the cases the body is moving toward another stage which is known as putrefaction, as it is a very important procedure and most of the time it is a sure sign of the death. How it is the most sure sign of the death? Because obviously, and why early changes can be, yeah, like you cannot you can say it surely but आप उसमें थोड़ा सा मिस कर सकते हो बाज़ औक़ात. Like if the patient is in the suspended animation या freeze हो गया है because of the hypothermia and still alive है, तो आप एक chance sometime दे सकते हो अगर आपके पास invasive procedures नहीं है, ECG नहीं है, EEG नहीं है. But putrefaction is a thing which is only possible just by looking at the body. You can easily say the body is dead and obviously the body has died before 24 hours or before like 12 to 24 hours से पहले body की death हो चुकी है. If initial sign of putrefaction appear, which is we are going to discuss what it is. So ये हम discuss करेंगे. So putrefaction basically is other name of, and this is putrefaction. Many people जो है ना वो से putrefaction कहते हैं, बहुत से बच्चे. So putrefaction is a word which is another word for decomposition. You all know we all are organic materials, ठीक है? Even the plants, animals, humans, and the end of this is to conversion towards the inorganic one, ठीक है? उसके अंदर convert होना होता है. So this is the last process in which the body is normally resolved, body is in the resolution towards the inorganic material, ठीक है? And there are various factors which affect the body, ठीक है, for in converting into an inorganic mass from an organic one. The most important one are two mechanisms. If anyone asks you about what is the mechanism behind the decomposition or what is the mechanism behind the putrefaction, your answer is autolysis and bacterial action. What is autolysis? What do you think about this? Exactly, ठीक है. तो ये नॉर्मली क्यों नहीं हो रहा होता? हमारी बॉडी जब अलाइव होती है तो वाई ऑटोलाइसिस इज नॉट एक्टिव? एग्जैक्टली, बट वाई इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग लाइक? वेरी नाइस. एक्टिवेट नहीं किए जाते, ठीक है. तो व्हेन थिंग्स आर अरेस्टेड नॉर्मली, जैसे फॉर एग्जांपल इफ एनीवन डाइड बिकॉज ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, क्या हुआ? लाइटिक एंजाइम्स और एक्टिवेट हो गए, ठीक है. तो उसकी वजह से बॉडी की जो अपनी इंटरनली एंड एक्सटर्नली बिकम लिक्विफाइड, सॉफ्टन, ठीक है. और उसकी खुद ही ईटिंग, एज यू नो, ऑटोलाइसिस मीन्स सेल्फ ईटिंग या सेल्फ डिस्ट्रक्शन. सो फ्रॉम द इंटरनल साइड ऑफ द बॉडी जितने भी आपको पता है लाइसोसाइम्स रिलीज हुए, जितने वो ज़्यादा हुए, अनकंट्रोल्ड हो गए, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था किसी और चीज़ का जो उनको अरेस्ट करता. सो द बॉडी स्टार्टेड हैविंग द डिकम्पोजिशन फ्रॉम इनर सेल्फ सबसे पहले, और ये नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है 2 to 3 आवर्स आफ्टर डेथ एंड कंटिन्यूस अप टू 3 to 4 days, बल्कि उससे जल्दी ही ऑटोलाइज सारा हो जाता है. बट 3 to 4 आवर्स के अंदर दिस ऑटोलाइसिस इन द बॉडी इज गोइंग टू स्टार्ट लाइक दिस, ठीक है. देखो अब ये राइज ऑफ एंजाइम्स हो गए, एंजाइम्स लेवल राइज हो गए, ठीक है, टिश्यू सेल्स में, हर चीज़ में. उसकी वजह से सॉफ्टनिंग एंड लिक्विफाइंग ऑफ द बॉडी सेल्स हो गई, ठीक है. और ये स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद ये एंड हो रहा है. दूसरी चीज़ हमारे पास थी बैक्टीरियल एक्शन. तो आपको क्या लगता है हमारी बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा में होते हैं बैक्टीरिया कि नहीं होते हैं?
मोस्टली कहाँ पे होता है? माउथ के अंदर होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ये हमें उस तरह से प्रॉब्लम नहीं दे रहे होते ड्यूरिंग द लाइफ जिस तरह ये आफ्टर डेथ होते हैं। सॉरी। So bacteria, as you know, they are basically going to affect on all three organic materials which are inside the body. Which are those specific materials जो organic हमारे अंदर हैं? Proteins, carbs and fats. ठीक है। अब क्या होना है? No talking boys. अब क्या होना है कि जो बैक्टीरिया हैं दे आर बेसिकली अफेक्टिंग ऑल दीज थ्री ऑर्गेनिक थिंग्स जो हमने पढ़ लिया। इसमें कौन कौन सी टाइप के बैक्टीरिया होंगे? पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। बोथ टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो हैं वो प्रेजेंट हैं एंड दे आर गोइंग टू अफेक्ट ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल इनसाइड एंड कन्वर्टिंग इनटू इनऑर्गेनिक मटीरियल। मोस्ट ऑफ द टाइम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज होते हैं दीज आर कोलेस्ट्रीडियम वेल्शाई, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, बी प्रोटियस। बट जो ऑफेंडर है जिसको कहते हैं वर्स्ट एनिमी ऑफ द बॉडी, वो कौन सा है? दैट इज कोलेस्ट्रीडियम वेल्शाई। इन MCQs अगर आपसे पूछा जाता है कि बैक्टीरिया विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुट्रिफैक्शन, तो वो क्या आएगा? कोलेस्ट्रीडियम वेल्शाई आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं? इट इज बेसिकली कन्वर्टिंग, हीमोग्लोबिन को भी डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है। सारा जो है वो इंटरनली लिक्विफिकेशन कॉज कर देते हैं। जितनी भी इंटरनली ऑब्वियसली स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो इंटरनली वो ऑर्गन्स, अब इसके अंदर से कौन से एंजाइम्स नॉर्मली रिलीज होंगे? लेसिथिनेज, ठीक है। नॉर्मली लेसिथिनेज रिलीज होगा एंड दैट लेसिथिनेज किसको करेगा प्रॉब्लमेटिक? लेसिथिन को, शाबाश। इसके अलावा लेसिथिन को इफेक्ट करेगा विच इज बेसिकली प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, और स्पेसिफिकली ब्लड सेल्स की भी आपको पता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये है। एंड उसकी वजह से क्या होगा कि नॉर्मल आपको पता है कि आपके फॉर एग्जांपल एक एरियाज हैं, रेक्टम के पास एरिया है या आपके फ्लैंक्स हैं, यहाँ पे नॉर्मल फ्लोरा ज़्यादातर प्रेजेंट होता है। बट इन दैट केसेस व्हेन इट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय द लेसिथिन एंड द सेल मेम्ब्रेन, तो क्या होता है? ब्लड फ्लो के साथ वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड आउट हो जाता है। तो जो पुट्रिफैक्शन होती है, जो स्टार्ट हुई होती है फ्रॉम द राइट इलियक फोसा, इट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बॉडी। तो स्पेसिफिकली ज़्यादा जल्दी कौन से ऑर्गन्स के पास जाएगी? स्टार्ट तो हो गई ना जहाँ पे फ्लोरा थी, ब्लड के साथ जाएगी तो कहाँ जाएगी? जहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, ठीक है। ब्लड सप्लाई जहाँ पे ज़्यादा होगी, ब्लड के साथ फ्लो गई, और वह उन एरियाज़ को हम कहते हैं कि कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो इंटरनली जल्दी पुट्रिफाई होंगे एंड सम ऑर्गन्स आर पुट्रिफाइंग लेट, ठीक है। जैसे कैप्सुलेटेड की हम बात करते हैं कि किडनीज हैं ये लेट होंगी, ठीक है। आप लेरिंग्स एंड ट्रेकिया बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी सफन हो जाएगा। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि हाउ द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स अकर इन केस ऑफ पुट्रिफैक्शन।